Assalamu alaikum, everyone. Welcome to my show, Coffee with Tawfiq, with another session. Today, we are discussing, are men better in communication than women? एक बड़ा सवाल है, क्या मर्द बेहतर हैं कम्युनिकेट करने में ख़वातीन से? तो जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ हैं उस्मान, आप जानते ही हैं सब, उनको यूके से हैं। सफ़ीना इलाही, वो भी यूके से हैं। डॉक्टर बेला, उनको भी आप जानते हैं, वो भी यूके से हैं। तो और मुस्तफ़ा को भी आप सब जानते हैं, रिसेंटली हमारे साथ इन्होंने भी ज्वाइन किया है। लाहौर से हैं, पाकिस्तान, और मैं न्यूयॉर्क से, यूएसए से। तो आज जानने की कोशिश करते हैं कि are men better in communication, or they are really better in communication than women? I know it's a strong question, but let's find out. Let's go to the audience and see if anyone takes out their swords or they take out their punching bags. I don't know. Maybe they'll bring the gloves. I'm sure you have the gloves. Let's see who's gonna become the punching bag today. So let's see. तो सफीना, मैं आपसे पहला सवाल करूंगा कि are men better in communication than women? What do you say? Assalamu alaikum, Tawfiq Saab. That's quite a big question, really. It's I mean, when I say big, mera matlab ye hai ki there's so many factors that affect communication, and it can be a mixture of anything. It depends on your background, where you live, the country you live in. Are you living rurally? Are you living in an urban area? It's nurture, it's male and female roles, it's expectations. But I personally do not think that men communicate better with females. When it comes to the work environment, I think men communicate very easily because they feel as though they are on the same wavelength. So अपने नाल वो गल कर लेंदे हैं, लेकिन जिल्लै औरत दी गल होंदी है ना, डिपेंड करदा है कि ओह् की समझदे न औरत दे बारे च, and that includes your wife, your mother. Your daughter might be different, but traditional roles makes it quite a difficult thing to do, to communicate for men. It's not expected to be a macho thing. So no, they don't communicate better. I think something strong is coming. I can see it. Gee, Mustafa, you have a red card, and so has Osman. So, Dr. Bela, Gee, Mustafa, please respond. जी उस्मान पहले बात करें, फिर मैं बताता हूँ बाद में। जी हाँ, so you got to respond to Safina first, and then to your point. Okay, so I'm responding to it. Yeah. Okay. So if you ask the question, are men better communication than women, then the plain and simple answer is yes. अभी उसकी जो reasons हैं वो मेरे पास बहुत सी हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल एक दे देता हूँ. आपने अभी एक सिंपल क्वेश्चन पूछा सफीना से कि आर मैन बेटर एट कम्युनिकेशन. सफीना डिडंट आंसर करेक्ट डायरेक्टली. शी वेंट इनटू अदर थिंग्स. वो घूमी, उन्होंने एक और लाइन पकड़ी, उन्होंने ये बताया कि जी उनकी पोजीशन ऐसी होती है, विमेन, उसमें उन्होंने विमेन की बेचारगी को लेके आई किसी तरीके से, ठीक है. और उसके बाद जो है ना वो it was all like a mixed up response, ठीक है ना. There was no हाँ. So you're trying to say she didn't प्रोग्राम make के any शुरू में ही आपको प्रोग्राम के शुरू में ही Are you trying to say she didn't make any sense at all? No, probably she did. I'm sure Dr. Bella को समझ आई होगी. Probably. वो डॉक्टर बिरला को शायद समझ आई होगी, लेकिन आप सिंपल बात है ना, आपने पूछा आर मेन बेटर देन, उसका आंसर था या तो यस या नो. अगर नो तो ये वजह है, यस तो ये वजह है, ठीक है ना. ठीक है. शी वेंट अबाउट, आपने कहा ना पहले के एक ट्रैक नहीं है, यू हैव टू गो दिस वे, और उसके बाद जो है ना वो वापस आई है. तो आपको बेसिकली प्रोग्राम के शुरू में एग्जांपल मिल गया कि women cannot communicate as good as men. Okay, जी मुस्तफा, आप क्या कहना चाहेंगे? Good comeback, उस्मान. मैं थोड़ा फैक्चुअल बात करना चाहूँगा. इसलिए because I believe that men are they are best in communication. Oh wow. Not even better, but they are the best.
एक्चुअली अगर आप दुनिया के टॉप 3 ऑडिटर्स निकालें ना, जिनको बात करना आता है, स्पीच की, इवन के टॉप 10 भी निकाल लें, उसमें एक भी आपको खातून नहीं मिलेगी। नंबर 1 पे है मार्टिन लूथर जूनियर, विंस्टन चर्चिल, देन नेल्सन मंडेला। अब ये 3 मैं आपको बता रहा हूँ हिस्ट्री से। आई कैन गिव यू 10 नेम्स एज वेल। और 10 के 10 जो बेस्ट ऑडिटर्स हैं वो आज तक मर्द रहे हुए हैं। इन टॉप 15 देयर इज अ वन वुमन ओनली, बट इन टॉप 10 देयर इज नो वुमन। और मैं अगर वो मैं डिस्कशन में बताऊंगा कि वो कौन है खातून, लेकिन अभी मैं थोड़ा आपके लिए वो सरप्राइज रखता हूँ कि आई होप कि इनको पता हो। बट एनीवेज, men are best in communication. Yeah. All right. Acha, so far guys are coming extremely strong, I can tell. Bela, you have a lot of pressure on you. जी डॉक्टर बेला, माइक अनम्यूट कर लें अपना। घबराए नहीं, माइक अनम्यूट कर ले। नहीं घबराऊंगी मैं क्यों, आप लोग घबराएं, अपने पसीने के लिए रुमाल शुमाल पकड़े। पहली बात तो ये कि जो मुझे लगता है ना तौफीक भाई, कि जिस तरह औरतें समझा सकती हैं कोई भी अपनी बात, उस तरह मर्द तो सोच भी नहीं सकते समझाना। क्योंकि जितने इमोशन, जितनी इमोशनल इंटेलिजेंस औरतों की स्ट्रांग होती है, ये आप कहीं भी पढ़ लें, बायोलॉजिकली देख लें, आप किताबों में पढ़ लें, फिलॉसफी में देख लें, उस तरह मर्दों की तो हो ही नहीं सकती। मतलब मैं समझती हूँ जिस तरह हम औरतें रंगों में बहुत ज्यादा रंग आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, उसी तरह हमें इमोशंस का भी पता होता है कि अब ये इमोशन है, अब ये इमोशन है, अब ये इमोशन है। और जब आपको बहुत ज्यादा चीजों का पता हो, जब आपको पता हो कि आपकी रेंज बहुत ज्यादा है, आपको पता है कि आप किस तरह एक चीज को बयान कर सकते हैं, तो फिर आपको ऑब्वियसली, जैसे सफीना ने जो बात की, अगर हाँ या ना करना था, मैं उस्मान की बात का जवाब दे रही हूँ, तो फिर ये पॉडकास्ट तो नहीं है ना, फिर हम सारे कहे जी हाँ वाइवा चल रहा है, नहीं, ऐसे तो थोड़ा ही नहीं होता। तो आपने जब कोई डिबेट करनी होती है, जब आपने कोई बात करनी होती है, तो फिर उसको आपको बयान करने का तरीका भी आना चाहिए। सफीना ने बहुत अच्छी बात की कि बहुत डिपेंड करता है कि आप किस पैराए में देख रहे हैं। मतलब कि अगर आपसे फॉर एग्जांपल हम एक बच्चे को ही ले लेते हैं, एक बाप के समझाने का तरीका और एक माँ के समझाने का तरीका बहुत डिफरेंट है। बाप, मेरा ख्याल है कि उतना तो बच्चे को क्लोज भी नहीं होता, उसको यही कहना होता है कि ऐसे करो या ऐसे ना करो। इवन हस्बैंड एंड वाइफ में देख लें, उनको बस यही 2 तरीके आते हैं, या तो हाँ या तो ना, या और भी किसी रिलेशन में। औरतों को अपनी बात समझाने के लिए बहुत अच्छे तरीके आते हैं। उनको मैं अगर ये भी कहूँ, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना भी आता है, उनको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक प्ले करना भी आता है, क्योंकि वर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं, वोकैबुलरी अच्छी है और इमोशंस हैं, वो हर चीज को उस तरह महसूस कर सकती हैं। अब जो उस्मान ने बात की है, उसकी बात का जवाब ये है कि ये सॉरी मुस्तफा ने जो बात की है, इसका जवाब ये है कि आप इस टाइम डिबेटर्स नहीं देख रहे कि कौन अच्छी डिबेट करता है, कि कौन पोडियम पे जाके या माइक पे जाके खड़ा होकर बड़ा अच्छी डिबेट करता है। तो वो बहुत अच्छी बात है। क्या उस डिबेट में कम्युनिकेशन अच्छी थी? क्या उस डिबेट में 1 to 1 अगर आप एक बात करें एक बंदे की, वो थी? अगर तो आप ये कहें कि डिबेट अच्छी कौन करता है, तो वो मर्द बहुत आगे हैं, उनको बहुत अच्छा आता है। किसी भी स्टेज पे खड़ा कर दो, 5 लोग तालियां बजाने वाले हो, उनकी ईगो बूस्ट हो जाती है, उनको ये बहुत पसंद आता है। अच्छा, डिबेटर्स भी बहुत अच्छी हैं सफीना, लेकिन बहरहाल मेरा ये पॉइंट है कि इसमें तो कोई बहस है नहीं है। जब आपने मुझे टॉपिक लिखा था ना, तो मैं ये कही थी कि मैं तौफीक भाई को कहूंगा, ये तो आपने ऐसा टॉपिक रख दिया कि आप पूछ रहे हैं कि आपका क्या हाल है, बेला रोटी को चोची कहना चाहिए कि नहीं। ये इतना क्लियर है कि औरतों से बेहतर जो है वो कोई अच्छी कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकता। चले, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन आपकी शक्ल से लग रहा है कि पहले जवाब 2 लोगों के बाद आप शदीद गुस्से में लग रही हैं आपके फेस एक्सप्रेशन से। तो इट वाज ऑन योर फेस डॉक्टर फेला। अच्छा, मुझे ना आजकल गुस्सा वैसे ही बड़ा चढ़ा हुआ है। मुझे ना बंदा चाहिए कोई फैंटी मारने वाला ना, वो मैं ढूंढ ही रही हूँ आजकल। मैं ना हर छोटी-छोटी बात पे ना आजकल वैसे ही रो रही होती हूँ। इट वाज प्रीटी ऑब्वियस आप काफी गुस्से में थी। तो मुस्तफा और अच्छा, मैं गुस्से में लग रही हूँ तौफीक भाई? नहीं, जवाब दे रहे, जवाब अच्छा, वो मेरी इंटेंसिटी उस तरह की होगी। जी। अच्छा, तो लेट्स गो टू क्विकली, आप उस्मान और फिर मुस्तफा क्विकली रिस्पॉन्ड करें। आई वांट टू गेट टू सफीना। जी देखिए, जब मैंने रिस्पॉन्ड किया था ना सफीना को, तो मैंने इसलिए कोई ये बिल्कुल एक फिलबदी मैंने एक चीज पकड़ी थी, क्योंकि हमें मुझे इस बात को प्रूव करना है कि women are not as good in communication। अब उसके मैंने उस वक्त ये कहा था कि इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा, वजह मैं आपको बताता हूँ। ये नहीं कि मैंने ऐसे ही हवा में तीर मारा था, डॉक्टर बेला ने समझा हुई पकड़ा गया बंदा, नहीं। देखिए, डॉक्टर बेला ने खुद कहा कि खवातीन जज्बाती होती हैं, ठीक है। उन्होंने जवाब देते हुए भी खुले जज्बात का इजहार किया, ठीक है। जब इंसान जज्बाती होता है ना, तो उसको अपनी कम्युनिकेशन पे वो कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि इमोशंस ओवरकम करते हैं ना जिस वक्त, तो आपकी स्पीच में वो असर नहीं रहता। आप जो है सप्लीमेंट्री बातों की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मेन
इसलिए बेहतर होते हैं कि मेन जो अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रिसर्च, जब एक खातून जब किसी चीज को समझाने की कोशिश करती है, किसी चीज को एब्जॉर्ब करती है ना, क्योंकि आप पहले एब्जॉर्ब करते हैं इन्फॉर्मेशन को, फिर समझाने के लिए करते हैं. व्हेन women absorb any information, they use both side of their brain. When men do that, they normally use the left hemisphere of their जो ब्रेन है. उससे होता ये है कि men are normally very simple, concise and to the point. They would not go into supplementary details. वो पूरा point को identify करेंगे. They will not talk about other things, and they will not even talk about until they have the solution to a problem, or until they know exactly what they're going to talk to. और देखिए, मुस्तफ़ा ने orators की बात की थी, debaters की बात नहीं की थी. Orator is different to debate. ठीक है. और ओरेशन का ये होता है कि ओरेशन में आपने अपनी बात को कम्युनिकेट करना होता है इफेक्टिवली. वहां पे किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं जीतना होता है. डिबेट में आपने आर्ग्यूमेंट जीतना होता है. सो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस इन दैट. सो और दूसरी बात ये है कि मेन आर बेटर एट कम्युनिकेशन बिकॉज जब से ये दुनिया चली है, मेन have been in commanding position. अब उसको आप ये सप्लीमेंट्री इसका निकल सकता है कि जी वो पैट्रियार्कल निजाम है, वो एक अलग बहस है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा. लेकिन बिकॉज ऑफ दैट कमांडिंग पोजीशन, मैन के डीएनए में वो कॉन्फिडेंस आता है कि वो एक चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से अथॉरिटी के तरीके से बात करता है. जी ठीक है. लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि किसी भी बंदे पे, अगर आपकी ऑडियंस बैठी है ना, एक बंदा जिसकी आवाज में कमांड हो, कॉन्फिडेंस हो, उसकी बात बेहतर कम्युनिकेट होती है. ठीक है जी. इसके अलावा भी कुछ नेचुरल और फिजिकल एजेस हैं मर्दों को, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन उनकी बेहतर होती है. मैं आगे आऊंगा पॉइंट्स पे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे रुकूंगा. थैंक यू. क्विकली मुस्तफा आप रिस्पॉन्ड कर दें, बिकॉज़ सफीना इज एंक्शियसली वेटिंग. राइट, एग्जैक्टली. अभी डॉक्टर बेला ने एक बात की थी कि ये जो मैंने जिक्र की, ऑडिटर का जिक्र किया. देखिए, ऑडिटर बेसिकली अभी आई थिंक उस्मान ने भी एक्सप्लेन किया, मैं उसको मजीद थोड़ा डिटेल में बता दूं. ऑडिटर वो होते हैं जो कि जिनको स्टोरी नरेट करनी आती हो, जिनको बताना आता हो कि इस चीज का स्ट्रक्चर क्या है. Okay, Mustafa is being disconnected. जी, Safina, you want to continue? मेरी आवाज आ रही है? He's back. जी. राइट. अभी मैंने आपसे जो जिक्र किया बेसिकली वो मैंने किया जैसा मार्टिन लूथर किंग जूनियर का किया, राइट. उसके अलावा मैंने विंस्टन चर्चिल का किया, और साथ में मैंने किया नेल्सन मंडेला का. लेकिन उसके अलावा और भी है, बराक ओबामा वगैरह भी है, सब कुछ है. अच्छा, ये तीनों लोगों का जिनका मैंने नाम लिया अभी आपके सामने, चर्चिल, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला, इन्होंने जो अपना नैरेटिव दिया उसकी वजह से इनकी पूरी कौम बन गई. माँ बेशक एक बच्चा पाल सकती है, उसको सिखा सकती है, तरबियत कर सकती है, लेकिन अगर मर्द को अच्छी बात बतानी आती हो, वो पूरी नस्ल बना जाता है. और ये बात हमेशा याद रखें, कौमें हमेशा उस वक्त बनती हैं जब आपके पास बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स हो. मैं ये नहीं कहता कि खवातीन शायद उस तरह नहीं बोल सकती, वो भी अच्छा बोल सकती हैं, लेकिन ओवरऑल जब आप हिस्ट्री देखेंगे ना, आपको टॉप 20 आपको गिनवा भी देता हूं, अगर आप कहेंगे मुझे, टॉप 20 में से सिर्फ एक या दो खवातीन होती हैं. मोस्टली आपको बंदे मिलेंगे जिनको अपनी स्टोरी नरेट करनी आती है. देखिए, माँ की तरबियत के हिसाब से होता है, बच्चे को बताती है भाई ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लेकिन वो सिर्फ एक घर की हद तक चीज़ है. जो मर्द कम्युनिकेशन करता है वो पूरे माशरे के लिए करता है. अगर वो चाहे तो वो अच्छी बात भी कर सकता है, चाहे तो वो बुरी बात भी कर सकता है. केस हाँ, वो समझाने की, स्टोरी बताने के चक्कर. तो अच्छा, तो फिर ये जब आप स्टोरी को नरेट कर रहे होते हैं तो हमेशा याद रखिए, जिसका स्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग होगा बात को नरेट करने में, उसका पॉइंट उतना स्ट्रांग होगा. तो अभी मैंने हार्डली आई वाज रीडिंग, मैं इस टॉपिक में पढ़ रहा था, मैंने 20 में से सिर्फ 2 खवातीन ऐसी देखी हैं. एक का नाम शायद किसी को पता भी ना हो, बारबरा, और एक सुजैन है, जो कि टॉप 20 ऑर्डर में आती हैं. बकाया 18 मर्द हैं. ये जो दोनों बारबरा और सुजैन है, इसकी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, इसको इसलिए याद है, बहुत अच्छा बोलती हैं.
अच्छा सफीना चल बहुत चले देर से सफीना। वो वेट कर इसलिए रही थी। गर्लफ्रेंड बनी थी कि मुस्तफा इज अ गुड स्टोरी टेलर। हाँ, इसने अच्छी कहानी कराई थी आराम से। अभी तक करा रहा है। कम्युनिकेशन डॉक्टर बेला, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव अच्छा, इसमें तो मैं कम्युनिकेशन। मानूंगी, कहानीबाज तो मर्द भाई कमाल होते हैं। अच्छा, अपने यस। आप की ना पूरी सफीना स्टोरी खींचते हैं कि हम कितने दुखी हैं, और फिर मतलब कि चले वो तो एक अलग डिबेट है, आप बात करें। उस्मान मैं पूछना चाहनी सामने तुसी डेटा किथों लियांदा वा? तुसी क्या वे साइंटिफिक रिसर्च है? साइंटिफिक रिसर्च है अगर तो फिर डेटा किथों लियांदा वा? What was the who were the people that were tested? I'll send you the academic research paper. ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵਈ ਜੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿ like 40 years ago it was the last country that gave women the right to vote. ਅਗਰ right ਵੋਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ये आपने बहुत अच्छी, पता है सफीना, मेरे ज़हन में भी ये पॉइंट आ रहा था कि we are आप not देखें तो again. सही कि हमें माशरे में एक्सपोजर कब मिलना शुरू किया हुआ है। Well, मतलब आप एक अपनी 100 साल हिस्ट्री को मिनट अगले की 10 साल जिंदगी के ऊपर साथ मिला रहे हैं, और फिर आप पेपर बोल आ रहे हैं जो गूगल पे पड़े हुए हैं, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है उसके लिए, बस आप कह रहे थी एक स्टडी। मैं भी कह देती हूँ शत्रुघ्न सिन्हा की एक स्टडी में ये लिखा हुआ है। एकेडमिक स्टडी में डिफरेंट होता है, आप बॉलीवुड की स्टोरियां ना पढ़ा करें। नहीं, एकेडमिक बात स्टडी की है, वो सही बात की उन्होंने, आपका रेफरेंस जो क्या है, अभी कितनी है, वोट क्या वो वाली बात पीयर रिव्यूड स्टडी ओए है? एक किस तरह मिनट की एक study है? मिनट टेक इट इजी टेक इट नहीं Take it मुझे easy. ये वोट वाली बात जो है ना, वोट वाली बात जो है इनको बतानी है। डू यू इवन इमेजिन कि जब आप इस्लाम की स्टडीज करते हैं, सबसे पहली जो खातून थी बिजनेस वुमेन जिनकी शादी हुई थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दैट वाज हजरत खदीजा। एंड हजरत खदीजा फर्स्ट वुमेन जो उनको हर बात में एडवाइस और मशवरा करती थी। तो इसलिए जब ये लोग बोलते थे वोट का हक बहुत लेट मिला, चलो फिर तो हमारी बात खुद ही इन्होंने ही कर दी कि अगर हजरत हतीजा पहली खातून थी तो वो कितनी अच्छी खातून या वो उनकी कितनी अच्छी सजेशन देती थी, नरेट नहीं करती थी, पैगाम उस हजूर जमाने सल्लल्लाहु में अलैहि अगर देते किसी थे। एक खातून को यार, मौका मिला तो वो एक कहाँ मिनट, पहुंच गई। इसलिए तो एक मुस्तफा मिनट, खुद ही हमारी साइड ले ली। ये वोट का राइट बोला है ना, दिस इज गिवन बाय कंट्रीज। Stop. Islam has Please stop. right. That Islam kills your argument. No, no, example listen. is that kills your my argument. point You is just make no, yourself no, in there, no, mate. no. But they My can't. point एक is मिनट my एक point is मिनट I No, cannot listen. understand a thing. I cannot understand मुस्तफा anyone's point उंगलियां of उठाएंगे view. तो मैं दो डालूंगी अगर No. कोई पॉइंट ऐसे No. मुंह पे- यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. That's what I cannot understand anything. यार एक मिनट तेरा point please Point आ गया तुम्हारा। मुस्तफा एक मिनट let Safina finish and please मुझे कुछ समझ नहीं आया पिछले 5-7 मिनट आप लोग मुझे लग रहा था कि बकरा ईद आ गई है और बकरा मंडी में मैं आ गया हूँ तो for some reason I was thinking ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਉਹ ਜੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ हाँ ये टॉपिक ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੁਸਤਫਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ नहीं अब प्लीज इसको इंटरप्ट ना करिएगा मुस्तफा Do तू not- मेरी गल अच्छा पहले मेरी गल सुनो अब अच्छा सफीना को बात करने दें डू नॉट इंटरप्ट उसके बाद उस्मान उसके बाद मुस्तफा फिर उस्मान और डॉक्टर बेला आप अपना माइक रखें प्लीज बीच में नहीं बोलना जी सफीना आप बात करें अच्छा मैंने पहला मुस्तफा दस इन्हें बड़ा अच्छा एग्जांपल देता है इसने जो ऑन गोल कर देती है शी वाज अ बिजनेस वुमन no. यार अभी मैंने बोला बीच में नहीं बोला Let me explain. I'm saying this. No. मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बात दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। सबसे ज्यादा अगर ट्रस्ट किसी ने दिया, किसी ने कॉन्फिडेंस दिया, that was a man who was given the confidence कि हज़रत खदीजा is the best business woman in the history of मतलब जो अरब की हिस्ट्री थी, right? उससे जब वो मशवरा करते थे, जब वो बात करते थे सारा कुछ, तो ये बताने के लिए कहते थे कि औरत का एक मुकाम होना चाहिए। वेस्टर्न सोसाइटी में इट्स अ डिफरेंट गेम बॉल। इस वेस्टर्न सोसाइटी में ये होता है कि आपको वोट ही नहीं मिला, आपकी औरतें कभी बाहर ही नहीं निकली। अभी जिस आप सोसाइटी में रह रहे हैं, अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं, आई थिंक तौफीक साहब इसको पॉइंट को बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको तो वोटिंग राइट नहीं मिले। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक मैं ये कहता हूँ कि वहाँ की औरतें कुछ नहीं आवाज उठा सकी। दे आर नॉट, मतलब अभी तक कोई प्रेसिडेंट वहां से नहीं आया खवातीन में, यूएस में, जबकि इतनी बातें सुनी कि अभी पता नहीं वहां पे वुमेन राइट्स है, पता नहीं फंडामेंटल राइट्स है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम इज द ओनली रिलीजन जो कि औरत को राइट देता है। लेकिन मसला ये आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि हमारी जो खवातीन हैं, समहाउ
उसमें से आपको 1 या 2 20 में से 2 मिल जाएंगी ऐसी जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, बाकी ज्यादातर लड़ाई में तेज होंगी, फसाद में तेज होंगी और लोगों को मार देंगी। अच्छा तौफीक भाई, मैं बड़े अच्छा एक हंसी हूँ कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, यकीन करें, मैं देख रहा था, कंट्रोल नहीं हो रहा था। मुझे वो एक सफीना की शक्ल और मुस्तफा के एक्सप्रेशन देखना लग रहा था बेचारों को पता नहीं क्या ऐसे दिल करे कि सफीना ही हुई कहीं उन्हें बोल दो। अच्छा मुझे सेकंड क्वेश्चन पे मुस्तफा जाना तो है। ऐसे समझ रहा जिंदगी की आखिरी जंग है ये अच्छा चलो उस्मान तो बोलो, लेकिन फिर मैंने भी बोलना है। अच्छा आप लोग उस्मान, अच्छा जो नई बात कर रहा है वो अपना माइक प्लीज म्यूट रखे, क्योंकि मुझे कई दफा समझ नहीं आती है ना। आई नीड टू गो टू अ सेकंड क्वेश्चन, इट्स ऑलरेडी बीन क्वाइट अ व्हाइल। तो उस्मान क्विकली आपने पॉइंट देना है, लंबी बात नहीं करनी, एंड देन सफीना क्विकली गिव योर पॉइंट, एंड देन डॉक्टर बेला, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी उस्मान। देखिए मैं बड़ी सिंपल बात करूंगा। मैंने पहले बात की थी कि ये साइंटिफिक रिसर्च है और इसको मैंने उस वक्त कहा था एकेडमिक रिसर्च है, ठीक है, मैंने एकेडमिक का नाम लिया था और आपको रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस भेजूंगा, कोई मसला नहीं है। दूसरी बात ये है कि नेचुरली जो है मर्द की साख्त ऐसी है, अमेरिकन रिसर्च, ये भी रिसर्च है, स्टडी है, जिसमें ये देखा गया है कि किस किस्म का जो मर्द है वो प्रेसिडेंट के लिए चुना जाता है, ठीक है। उसमें वो उन्होंने लिखा हुआ है कि वो मर्द चुना जाता है जिसकी आवाज जो है ना वो थोड़ी सी भारी होती है, क्योंकि भारी आवाज जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट करती है सुनने वाले को। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारी आवाज हो मैं गई, तो यानी एक आप मिनट, कोई शुश 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 शुश, ठीक है, क्योंकि ये साइंटिफिकली बात अगेन रिसर्च में है, स्टडीज में है कि जनरली मर्दों की जो वॉइस होती है वो ख्वातीन से एक ऑक्टेव डीपर होती है, एंड डीपर वॉइस नॉर्मली हैज बेटर इफेक्टिवनेस, उसकी इफेक्टिवनेस अच्छी होती है, ठीक है। मैं एक नेचुरल एज की बात कर रहा हूँ जो ये मौजूद है। डॉक्टर बेला सफीना को मैं भेज दूंगा इनके जो है ना वो। और मैं आपको बताऊं, इसी वजह से डू यू नो द आयरन लेडी ऑफ यूके मार्गरेट थैचर एक्चुअली टुक वॉइस लेसन्स टू बिकम इफेक्टिव ऑरेटर, ठीक है ना। उसको ये काम करना पड़ा था कि वो उस जो एक यूनिवर्सल लेवल है, और यूनिवर्सल लेवल कहाँ से सेट हुआ था, वो उन मर्दों ने, उन ऑरेटर्स ने सेट किया था जो यूनिवर्सली नोन है। जैसे भी मुस्तफा ने कहा कि 20 में से 18 जो है वो टॉप 20 में से वो मर्द हैं, तो मार्गरेट थैचर ने भी वॉइस लेसन्स लिए थे ताकि वो उतना कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। सो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स बेसिकली टेल कि मर्द men are better at वो मर्दों से लेक्चर लिए थे, ये इनको बता दें जरा। हाँ ऑफ कोर्स अब टॉप 20 में से अच्छा, होते तो उस्मान आपका पॉइंट आ गया है जी। जी तो लेट मी गो टू सफीना देन डॉक्टर बेला। जी डॉक्टर सफीना, अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट करें अपना, माइक अनम्यूट। ओके Acha Usman, you said that about Margaret Thatcher, yeah, that she had to have the training. Okay, so eh jehde baki jehde leader aaye san ina cho kehda itna aisi big shot jehdiyan soniyan jehda speeches kar sakda si, kaun kar sakda, Biden kar sakda si, Trump kar sakda si, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਸਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ obviously कम परसेंटेज होती है। और दूसरी बात, सॉरी तौफीक भाई मैं काट रही हूँ सफीना, दूसरी बात ये क्वेश्चन क्या है कि कौन बेहतर प्रेसिडेंट है? एक मिनट अच्छा, अब जब सफीना एक मिनट सफीना या कोई भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, do not go to that person because then they're going to flash the red card, then you cannot complete your point. So complete your point, do not disagree at that moment, so at least say what you want to say. Okay, otherwise Mustafa Usman is going to respond on it. So no, you two keep quiet and listen to me now. Okay, yeah, this is a woman, let her speak. If you do not in history ever let women speak, they cannot be good orators. This is a patriarchal society. Sari dunya vich hai, everybody knows that. Men get the first opportunity, they run everything. Obviously or girls san or pichao jasan znani aurtan ho girl desan kitke galla tusi karte ho,
the Western society च भी अज भी होंदा है. Pakistan, they're way back at in regards to letting women come forward. ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਅੱਗਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ that you know oratory skills or whatever they're called, they are left behind. They just have to survive amongst men. So you know, and it's the same, and it's just a natural thing. If you can speak well, it's just something that a skill that you have. You can develop it, that's fine. But that doesn't mean to say men are better than women. It's like saying men are better artists at drawing than women are. That's nonsense. You can't do that. It's what comes from within. And communication is also guided by a lot of things, background factors. If you've brought up in your childhood as somebody who's always scared of their environment, they're never going to be able to speak whether they're a man, whether they're a girl or a boy. Never. ठीक हो गया आपका पॉइंट आ गया. थैंक यू जी. डॉक्टर बेला. उस्मान अभी नहीं, प्लीज जी. डॉक्टर बेला. अच्छा तौफीक भाई, मेरी बात सुने. मैंने जैसे पहले भी सफीना की बात में कहा था कि क्वेश्चन क्या है, कि हम क्या देख रहे हैं कि कौन, क्वेश्चन सिंपल जो मुझे समझ आया वो ये है कि कौन ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन किसकी अच्छी है, कौन अपनी बात को बेहतर तरीके से समझा सकता है. क्या मर्द बेहतर हैं औरतों से कम्युनिकेशन में, ये है सवाल. हाँ, कौन या क्या, चले मैंने उसको कौन कह दिया, आपने क्या कह दिया, लेकिन बहरहाल ये दोनों में कौन ज्यादा बेहतर जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है. मैं अब ये लोग जो एग्जांपल्स दे रहे हैं कि मार्गरेट थैचर ने ये किया, उसने डांस लेसन्स लिए, उसने ये किया वो किया, मतलब वो तो एक, आप जब किसी भी फील्ड में जाते हैं तो उस फील्ड की आप थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं. उसमें डॉक्टर बेला आप उनके काउंटर नैरेटिव दें, उनके पॉइंट को डिस्कस. मैं उनके काउंटर नैरेटिव में कर रही हूँ कि अगर मैं भी इसी तरह ही देखूं कि जो हमारी फील्ड है, अगर मैं मेडिसिन देखूं ना, और उसमें मैं देखूं कि जहां पे कम्युनिकेशन की फील्ड्स हैं उसमें औरतें फार मतलब कि आगे हैं, उसमें मर्द तो कहीं नजर ही नहीं आते. जैसे आप जितने भी साइकोलॉजिस्ट देख लें, साइकेट्रिस्ट देख लें, इन दोनों फील्ड्स में मैंने देखा है कि औरतें जो है वो बहुत अच्छी लिसनर भी हैं और बहुत अच्छी अपनी बात कम्युनिकेट भी कर सकती हैं. और इसीलिए आप इन दोनों फील्ड्स में देखेंगे कि औरतें ज्यादा है. इसके मुनिस्बत जिन कामों में एक्शन ज्यादा होते हैं वहां पे सर्जन ज्यादा है, सर्जन औरतें कम है. यानी कि जो करने वाले प्रैक्टिकल काम है उनमें मर्द ज्यादा होते हैं. और बाय नेचर, क्योंकि हमारा जेनेटिक पूल ऐसा है या हमारा एनवायरमेंट ऐसा था जब हम लोग ग्रो कर रहे थे कि मर्दों को एक्शन करने के ज्यादा मौके थे और कुछ करने के. औरतें तो आई भी अपने, क्योंकि हम फिजिकली भी वीक हैं, तो हम लोगों को तो आगे आने के लिए भी जो हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल है वो हमारी जुबान है. हमें इस जुबान को यूज करके बहुत जगहों पे अपनी जगह बनानी पड़ती है. इवन अगर आप पाकिस्तान में देखें तो मर्दों के मुकाबले में हमें हमारी जिंदगी का एक, अगर आप समझे तो यही तो एक हमने पाया है कि हम इसके जरिए आगे निकल जाते हैं. हमारी जुबान इतनी अच्छी होती है कि लोग हमसे इम्प्रेस होते हैं या डिप्रेस होते हैं, जो दो भी है, डिप्रेस भी हो जाते होंगे. दूसरा पॉइंट ये, जैसे अब गायनेकोलॉजी है, गायनेकोलॉजी में भी आप देखें ख्वातीन बहुत ज्यादा आ गया, उसमें भी बहुत ज्यादा आपको एक रैपो डेवलप करनी पड़ती है पेशेंट्स के साथ, जिसमें आपको काउंसलिंग की जरूरत होती है. ये तो मैं अपनी फील्ड की बातें बता रही हूँ. मेरे ख्याल में मेरा पॉइंट अभी भी ये है कि इवन मौके भी कम है, एजुकेशन भी कम है, और जिंदगी में बहुत देर बाद हमें एक्सपोजर भी मिला है, तो भी औरतें बहुत आगे हैं मर्दों से. इवन अभी भी आपका पॉइंट आ गया डॉक्टर बेला, इनसे बेहतर बोल सकते हैं. आपका पॉइंट आ गया, लेकिन आई एम सो सॉरी, इट वाज नॉट सो कन्विंसिंग. तो लेट्स गो टू मुस्तफा. जी मुस्तफा, आई एम सॉरी, इट वाज नॉट कन्विंसिंग. अच्छा तौफीक भाई, ये तो चीटिंग है ना कि आप खुद ही से पहले से जजमेंट देते. आप नहीं, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ ना जी. वो आप भी तो मर्द है ना, फिर जज में भी एक औरत हो. नहीं, जज में आई विल जज इक्वली ना. मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों इस तरह बोला. आई कैन टेल यू व्हाई. जी मुस्तफा. अच्छा, इनके कहने के मुताबिक ने बताया कि जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो खवातीन है, ये आपने सब में सुना होगा. इसका मतलब ये है कि ये चाहती है कल को मोहम्मद बशीर दाई बन जाए और वो जाके फिर जो है ना गायनेकोलॉजिस्ट बन जाए. ऐसे हो सकता है कि आप कहें मोहम्मद सादिक, मोहम्मद बशीर जो है जनाब ये गायनेकोलॉजिस्ट, मतलब ऑब्वियसली वो जो इसको कहते हैं सिलेक्टिव हियरिंग, इसको कहते हैं सिलेक्टिव हियरिंग. साइकोलॉजी और साइको एनालिसिस का पार्ट काट के सिर्फ गायनी. बीच में ना बोलो प्लीज, बीच में गुस्सा नहीं करना किसी ने. नोबडी गेट्स एंग्री है. ये लड़ाई में बहुत तेज है, लेकिन जब ऑर्डर की बात है तब भी तेजी दिखाएंगे. अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ कि आप मुस्तफा पर्सनल अटैक ना करो, मेरी इधर फिर इससे लड़ाई हो जानी है तौफीक भाई. नहीं, लड़ना नहीं है. मैं बताती हूँ मुस्तफा भी लड़ाई में बहुत तेज है. मजाक कर रहे हैं. पॉइंट सुने. आपको पता है 623 साल 628 साल ऑटोमन हुकूमत की, उनकी जो डाउनफॉल की वजह थी वो क्या थी? वो खवातीन थी. वो जब उनकी खवातीन हरम की जो खवातीन थी,
जब उन्होंने इंटरफेयर शुरू कर दिया, मैं नाम लेता हूँ, हुरम सुल्तान, तुरहा खातून, नूर बानो खान, सफिया खातून, कुसुम सुल्तान थे, जिनकी हिस्ट्री आज भी दागदार है। आई मीन एक कौम को चलाने के लिए मुस्तफा की आवाज नहीं आ रही, तौफीक भाई मुझे नहीं आ रही। मुस्तफा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। शुक्र है इसकी आवाज ब्रेक हो रही है। देखिए अपना इशारा आवन लग गया। ठीक है, ओके जी सफीना, आप बात कर रहे हमने हैं। मारा था ना, अल्लाह ने कहा कि इसकी मुस्तफा का इंटरनेट भी खराब है, इसकी तस्वीर अभी भी सब ऐसे जाती है। बहुत मेरी बारी है। रुक के चल रही। आपने सफीना का पॉइंट लिया, फिर डॉक्टर बेला का लिया, फिर मुस्तफा का लिया, अब मेरी बारी है। हाँ, कोई बात नहीं। लेट्स सफीना से। अच्छा मेरी आवाज आ रही है अब आपको? नो वेट, आई थिंक कनेक्शन में प्रॉब्लम है, आपके वॉइस में प्रॉब्लम है मुस्तफा। अच्छा, मैं दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ। ओके शुड आई? जी सफीना अच्छा सब चलो आज ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਛੋੜੀਏ, ਠੀਕ, because everything was unequal then anyway, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ don't pick women as example from the past, or the ਸਾਡੀ they are in us, so you know you can't say anything about them. There are biggest examples and what we learned through. Anyway, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੋ चलो ठीक है, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਅੰਦਰ ਪੜਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ करती है, ਗੱਲ करती है, सब। अच्छा सफीना, आपको पता है जहां इनकी कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है ना, इनके हाथ उठ जाते हैं। यानी इनकी कम्युनिकेशन का इतना ही लेवल है कि उसके बाद फिर ये लोग फिजिकल हो जाते हैं। इनको इतना इनकी कम्युनिकेशन पावर ही नहीं है। अब साहब है कि हो रहा है? रुक जा experts on communication. Stop, please stop. अच्छा, it's already been first segment से का time भी ज़्यादा हो गया, more than that, but I'll just take Usman's point of view, then I'm gonna go to the next question. लेकिन Usman, do not go, Safina said this, Dr. Bila said this, just say what you have to say. I'll stay with the argument जो कि दिया गया है ना। देखिए, do not point out anyone here, please. अभी तक देखें, मैंने बात की, मैंने कुछ साइंटिफिक रिसर्च की बात की, मैंने बात की जो एक फिजिकल नेचुरल जो एक एज है मर्द को, बीइंग वो जो वॉइस का मैंने बताया उसकी बात की। मुस्तफा ने बात की, उसने हिस्टोरिकल कुछ फैक्ट्स दिए, ठीक है, वो सारी बात की। सवाल सिंपल ये है कि क्या मर्द औरत से बेहतर कम्युनिकेटर है? हम कहते हैं हाँ, और ये रीजन है, ये उसकी रीजन है। और ये वो कहती है कि नहीं, वो देखिए, नहीं, आप उनके आर्ग्यूमेंट सुने ना, उनके आर्ग्यूमेंट में क्या है? पैट्रियार्कल सोसाइटी है, हम पे ये क्या भाई, पैट्रियार्की की तो हम ये नहीं कह रहे कि औरतें इस तरह क्यों, हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर मेन बेटर कम्युनिकेटर्स देन women or not? Yes, they are, because whatever the circumstances were, whatever the environment is, the effectiveness of men is much better than ठीक है women. अब यहाँ पे आ रही ना, देखिए, जब आप किसी एक खास कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे ना, अगर वो बात हुई यहाँ पे कि जी साइकोलॉजी में खवातीन अच्छी हैं, इसलिए अच्छी हैं कि उसमें वो एक खास पर एक कॉन्टेक्स्ट में है। मर्द बच्चों को अगर क्या नाम है माँ पालती है तो एक खास कॉन्टेक्स्ट है, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, उसके अंदर है। मर्द की जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो वो एक ओपन और फ्री एनवायरनमेंट में बात होती है, जहां पे हर बंदे का अपना मुंह सिर है, ठीक है। माँ का बच्चा जैसे ही बड़ा होता है तो फिर तो माँ की नहीं सुनता, ठीक है, अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। कहने का मकसद ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग in a specific context or a controlled environment. We're talking about a universal kind of situation. So हम जब उसको जितना उसको
कॉन्टेक्स्ट में लेके आएंगे ना, तो वो तो फिर अच्छा है। अब यहाँ पे बात शुरू कर देंगे कि जी अच्छा अगर हमने साइकोलॉजिस्ट की बात करनी तो एक कहेगा फिर न्यूरो सर्जन ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस सर्जन ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि उनका एक्शन का काम होता है। मैं कह रही हूँ कि जहाँ जुबान की बात है, जहाँ कम्युनिकेशन की बात है, औरतें डॉक्टर बेला आपने इस पॉइंट को एक कॉन्टेक्स्ट में 10 रिसर्चेस के वो निकाल के मसला क्या है, मसला ये है कि आप एक यूनिवर्सल क्वेश्चन का आंसर एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में दे रही हैं, व्हिच इज ऑलवेज रॉन्ग। मैं आपको ऐसे बहुत से, तुम्हें अगर आपको उस्मान अगर एकेडमिक रिव्यूज या उस तरह के चाहिए पेपर्स, तो मैं अभी 5 पेपर्स आपको निकाल के बताती हूँ। पेपर्स तो ये कह रहा हूँ ना, आप मुझे ये बताएं ना कि कौन सा पेपर आपका कहता है। देखिए अच्छा एक मिनट स्टॉप राइट देयर प्लीज। ओके, जो सवाल है ना, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट कुड बी डिफिकल्ट, लेकिन आई थिंक कि इसका जवाब जो है ना वो आप रियलिटी बेस्ड दें, हिस्ट्री में ना जाएं, पेपर्स पे ना जाएं, रिसर्च पे ना जाएं, साइंटिफिक रिसर्च पे ना जाएं, give real time examples, real life example। जी जी, लेकिन ये कि हाँ, जो मार्गरेट थैचर का आपने एग्जांपल दिया, that's a known example। जैसे मुस्तफा ने विंस्टन चर्चिल का, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात की, they are the living examples and they are always been quoted for their work। तो फिर भाई अब आप ये तो बातें आप कर रहे हैं कि मर्दों का माशरा है, मर्दों की हम इस टाइम इस जमाने इस माशरे की बात कर रहे हैं। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि We are not talking about माशरे के problems. We are not talking about माशरे के problems. माशरे के लोगों की आप लोग एग्जांपल्स दे रहे हैं। कम्युनिकेशन मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि ये तो बहस ही फजूल है। इसमें तो मुझे इतना क्लियर है, मेरे लिए तो ये क्रिस्टल क्लियर है कि औरतों से बेहतर कोई अच्छा कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता। मैं ये एग्जांपल, ये क्वेश्चन ही क्या, ये मैं फिर कहूंगी, आप कह रहे हैं कि आपका क्या हाल है बेला, रोटी को चोची कहना ना शुरू कर दे दो मर्दों को बिठा के। वो कह रहे हैं नहीं चोची चोची चोची, मैं कहूँ हाँ वाकई बात तो बिल्कुल उन्होंने सही कर दी है। अब देखिए तौफीक साहब, आपने कहा था कि फैक्ट्स और साइंटिफिक बातें करें, ये क्या रोटी चोची हो रही है यहाँ पे, ये कम्युनिकेशन है आपकी? नहीं। अच्छा, आई एम गोना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। पहला क्वेश्चन देखें, पहले क्वेश्चन में टुक मी 10 minutes extra than I anticipated, 11 minutes actually more than I anticipated। Okay। ये बहुत टू द पॉइंट बात कर रहे थे। मार्गरेट थैचर ने ये किया, हुर्रम सुल्तान ने ये किया, उसके दुपट्टे का रंग ये था, इसलिए वो बहुत अच्छी औरत। हम लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं कि उसको वॉइस लेसन्स दिए, डॉक्टर बेला कह रही है उसे डांस क्लासेस दी। हम कह रहे हैं उससे वॉइस लेसन दिए, वो कहते हैं उसे डांस क्लासेस दिए। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया, इनको दुपट्टों का रंग याद आ रहा है। मुझे लग रहा है मैं आप मेरा पॉइंट समझे ना उस्मान, ये इतना ही रेलेवेंट था मेरे लिए, वो गुस्से से चला ही गया कि अच्छा, मुझे लग रहा है बकरा ही दोबारा आने वाली, लग रहा है बकरा मंडी आया हुआ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं तो ठीक भाई, आपको पता है खुरैम सुल्तान और ये जो जितनी इन तर्किश माशरे की ख्वातीन थी, इनका कितना स्ट्रॉन्ग रोल था। मतलब ये सुना है उस जमाने की जो बैकबोन थी ना, ये सारे जो मेन डिसीजंस थे वो यहीं से आते थे। मतलब ये मर्द तो ये शराबें और गौ तकिया लगा के नाच देखते थे। जरा म्यूट तो करें। उस सल्तनत के तबाह होने की वजह भी यही थी जी, 100 साल चलने के बाद वो सल्तनत तबाह होगी। उस सल्तनत की और जिंदगी की हर सल्तनत के तबाह होने की वजह ये है। मैं मानता हूँ कि वो बैकबोन थी, मैं मानता हूँ कि वो बैकबोन थी, लेकिन बैकबोन छुपी हुई होती है, पीछे होती है, वो सपोर्ट होती है, ठीक है ना? आप सोचे कि उस सपोर्ट की कम्युनिकेशन पावर कितनी स्ट्रांग होगी कि वो सपोर्ट आप सोचे ना, स्पेसिफिक बादशाह को एक औरत बैठ के बात कर रही है और वो सुन रहा है, चाहे वो उसकी माँ है चाहे वो उसकी बीवी है। वो खवातीन अपनी रियाया में जाके बताती नहीं थी कि ये करना है, ठीक है ना? वो रियाया को क्या करना जब उसने बादशाह काबू में किया हुआ है। अब ये बादशाह की बात तो भी सब आप देखें, जवाब सवाल गंदुम जवाब चना, ये बादशाह काबू करने के चक्करों में जाके नहीं बोलती थी, वो क्या करने के चक्करों में बात करें ना। ओ भाई, कम्युनिकेशन इन यूनिवर्सल यार, आप फिर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में जाती हैं। आप बादशाह काबू कर ले, हम मानते हैं कि बादशाह काबू हो जाता है। उस्मान के काबू करना वर्ड से, कम्युनिकेशन से। नो दिस इज नॉट। क्या हम बहस की बात कर रहे हैं कि आप जाके बहुत अच्छा माशरे में कैसे बोलेंगे? बस कर दो भाई, ये टॉपिक खत्म हो गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो ठीक साहब, इनको क्वेश्चन एक बार फिर समझा दे जरा, क्वेश्चन है क्या था? वो बाद में समझ, वो बादशाह काबू करने के चक्करों में है।
तुम क्या कह रहे हो कि वो बाहर जाके वो करे कि औरतों को वो बाहर जाके क्यों नहीं बोली? ये क्या पॉइंट है? भाई भाई, कम्युनिकेशन अच्छा, बात हो ना। तो अकबर यार। पूरे सेशन में ना बेला को जरा म्यूट कर दे पूरे सेशन के लिए। ठीक है। इसका तो जिंदगी का मकसद ये है कि मैं मर जाऊं, मेरी कोई वो हो जाए, मैं नजर ना हूं कहीं पे और बेला को म्यूट कर दो। मुझे इसका मैं वही सोच रही थी कि मैं हाँ इसकी जिंदगी का मकसद ना मेरा जिंदगी से ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕੌਣ हाँ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੰਟੈਕਸਟ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਬੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਨॉट तो भाई टॉकिंग, कैसे वी आर नॉट करते हैं? टॉकिंग। कैसे करते हैं? ओ भाई भाई बस कर दो यार। बादशाह से कम्युनिकेट दो। करती है वो, लेकिन लेकिन तो है ना, ओ भाई कम्युनिकेशन पावर तो है ना। नहीं, ओ यार कम्युनिकेशन पावर नहीं, ब्लैकमेलिंग पावर होती है वो। चलो अच्छा। जो भी है ये मुख्तलिफ अच्छा, सब बात- मान गए ने, मान गए ने, मान गए ने। नहीं मैं ये कह रही हूँ ये मुख्तलिफ उसकी नहीं बात सुने आप। ये चीज देखें, इनको एक सेंटेंस बोलो जिसमें पूरा मुकम्मल जवाब हो, उसको 1.5 घंटा ये बोलती रहती है। enough। अब कोई एक लफ्ज भी बात ना करे पहले सवाल पे। ओके, I will give my best answer in the end. Now Oh my अब God. आते हैं हम अब दूसरे सेगमेंट की तरफ। बाद में आप लोग लड़ लेना, जिधर मर्जी लड़ना, फोन कर लेना एक दूसरे को, स्पेस बना लेना, जो मर्जी करना, बाद में लड़ लेना। अच्छा जी, द सेकंड सवाल है अगेन, प्लीज वन पर्सन एट अ टाइम और डू नॉट टॉक ओवर ईच अदर। मुझे नहीं समझ आता कई दफा कि क्या बात हो रही है, तो मैं कोई रिस्पॉन्स भी नहीं कर सकता कि who is saying what and who is right or wrong in my opinion, लेकिन तो प्लीज वन पर्सन एट अ टाइम। तो अगला और आखिरी सवाल हमारा ये है कि डू men and women communicate differently, and if they do, why? So whoever wants to go first. Safina, you go first. I think they do communicate differently, but it depends usually because of their roles. So Okay. if in our traditional roles we have in the family we have mothers at home with their children, they will have a different kind of communication to the husband who is out at work, needed to communicate with everybody else. That's all. But if the man is at home, then he would have to acquire the skills that he needs to run a home, and she will do exactly fine in the outside world. It works. No, wait. You are saying कि जो what I understood what you said कि तुसी सारा कुछ ठीक कर दे हो, पर बंदा आएगा वो बिगाड़ देगा तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ नहीं, ਉਹਨੂੰ सीखना पड़ेगा. That's what you're trying to say? नहीं, I don't understand actually. तुम ना point किया, पर मैं कहनी हूँ communication एक ਚੱਜ ਹੁੰਦਾ है. Okay. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੱਜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ. ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ No. Talk about you, your family, your friends, and communication. Yeah, how between you men and women. No, I'm not talking about leaders or anyone. Okay, ठीक है. No, communication ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ I'm still ਮੈਂ ਸਮਝਨੀ ਆ ਵੀ ਦੋਏ men and women can do it, but I think women for some reason need to make it more a part of their life, and so they embrace it more easily than men do. Men समझते हैं कि we just go out of the house. This is where traditional roles come in. I'm talking about traditional roles, and I like them because you can't say equality. बच्चे जो तुसी इस दुनिया दे लियामने उन्हां नु समानना भी तां है ना कौन कर रहा सी. So you do it according to that. So you have to, I mean, like there's women who go out and work and do the children's side as well. Yes. That's what comes into my mind. लेकिन उन्हें बाहर भी जाना पैंदा है. अपने, to compete and speak, she has to communicate with the world outside. And if she can't, she won't be able to hold a job down. And now every woman can hold a job down because they have to communicate, because otherwise out they go. They will not pass anything. Okay. So I got your point, but it sounded like you are saying that you are better than your husband in communication. Is that true? Absolutely, without a single
iota of doubt. Okay, so all right, I can won't say go that into because too he's much. not here. I won't go in too much into details on that one because that becomes personal. But that's I'm talking about your individual examples here. Do not quote के वो फलाना 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 Okay, ठीक है. फलाना person. नहीं Okay. नहीं बस Yeah. लेकिन मैं अपने पार्टनर दी गल सिर्फ ना कर दी जेडी मैं extended family friends जिल्लै कोई गल होवे ना it's always the women who have to make the first move and keep the family going, and you can't do that if you're not good communicators. The men seem to just back off and leave it. There's something then इन्हों रहन दियो ਇਹ नहीं पता वे दूध उबल जासी ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ wife ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਸੀ mother ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਸੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ you will just go out doing your hunting. Whoa, yeah. Actually, I would humbly disagree on few things, but anyways, I'm sure Mustafa and Usman would respond. So let's go, Usman. Acha, Tawfiq sir, before I answer your question, tell me something. आप किस context में? Are we talking about traditional context? Are we talking about South Asian context? Or are we talking universal? Universal. No, we are not universal. Yeah. Yes. No, Universal. Okay. When we talk universal, when we talk universal, we are not looking at कि जी पाकिस्तान की खवातीन को ये करना पड़ता है तो मर्द तो चले जाते हैं. When you go universal, you have to see कि जी जो दूसरे कल्चर्स है ना उसमें ये चीजें उतनी ज्यादा नहीं है ऊपर नीचे. ठीक है गैप्स हैं लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है कि खवातीन को बिल्कुल ही बिठा दिया जाता है घर में और वो नहीं आप उस्मान दूसरी तरफ जा रहे हैं. My question is, do they communicate differently? If yes, sorry I was यही होता है ना. अब उन्होंने सफीना ने बात इस तरह कर दी कि मैं बहक गया था. नहीं तो मेरा काम है ना आपको रोकना भी तो फिर मेरा. अच्छा, definitely yes, they communicate very differently because women are overly emotional. ठीक है जी. आप कोई भी बात कर लें women emotion से बहुत ज्यादा काम लेती हैं. they are mostly they think emotionally first and then go into practicality and reality. Men generally compensate for you. No crosstalk please. Ji Usman. आया मजा. Men basically do not. इसीलिए आप गौर कीजिए कि when there's a situation where men and women have to talk, women generally get very emotional and outburst होते हैं उनके. ठीक है. ये जनरल आपकी रोजमर्रा में आप सारे देखते हैं, हम सारे देखते हैं. ओवरऑल उनकी रोजमर्रा में आउटबर्स्ट होते हैं और खवातीन कि इसी वजह से जो खवातीन टू खवातीन कम्युनिकेशन भी है ना वो ज्यादा खराब भी इसी वजह से होती है उनके आपस के रिलेशनशिप में क्योंकि इमोशनल साइड होती है. मेन जनरली इमोशनली रिस्पॉन्ड या कम्युनिकेट नहीं करते. वो प्रैक्टिकल लेवल पे बात करते हैं. I agree on that one. Emotions part I agree. इमोशनल पॉइंट होता है और ये बात वाकई है. और अगेन एक और फैक्टर भी है जिसमें मैं ये बात एक्नॉलेज करते हुए कि वुमेन को बहुत अरसे तक किसी भी कल्चर में उस कल्चर के हिसाब से उनको राइट्स लेट मिले हैं. ठीक है. जब राइट्स लेट मिलते हैं ना आपको तो आपका कॉन्फिडेंस ओवरऑल उतना बेहतर नहीं है जितना मर्दों का है क्योंकि मर्द तो हमेशा से रूल करते आ रहे हैं देखा जाए तो. ठीक है. तो ये चीजें जो है ना उसकी वजह से इमोशंस ज्यादा होते हैं. हाय आज मुझे जब मौका मिला. आप किसी को मौका देंगे ना, हाय आज मुझे पहली बार किसी ने पूछा. ये नहीं वो सोचेंगी कि अब मौका मिला तो उसको वो करो. इमोशंस टेक ओवर करते हैं. ये एक बड़ा बुनियादी फर्क है. वो बड़ा मशहूर एक वो मीम भी है ना कि वो एक स्विच बोर्ड है कि जी मर्द और औरत का स्विच बोर्ड है. मर्द का ऑफ ऑन है और औरत की एक ही बात तो वो 10-15 स्विचेस हैं. तो इमोशंस की वजह से. जी ठीक है आपका पॉइंट आ गया. सॉरी मैं जस्ट रिपीट कर दूं. ये सवाल है. It's not about who's better and who's not. It's not the question. Question is, do men and women communicate differently? And if you think they do, then why? That's the question. It's not about who's better. Pehle wala segment mein we had quite few fights in there. So, lekin that's not the question right now. Hai. Ji, Dr. Bela.
अच्छा, इसमें उस्मान की जो बात है उससे मैं बिल्कुल एग्री करूँगी कि वाक़ई औरतों के क्योंकि हार्मोनल मेकअप ऐसा है कि हम लोगों के मंथली या किसी भी तरह से हमारे टेंट्रम्स आते हैं। उसमें हमारा उस तरह कोई कसूर नहीं है। ये एक नेचुरल और फिज़िकल और जेनेटिक चीज़ है या जिस तरह के अल्लाह मियाँ ने हमें बना दिया हम वैसे हैं। तो ये वाक़ई इमोशनल एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है औरतों का जिसमें कि वो एक तो स्ट्रॉन्ग इमोशनली स्ट्रॉन्ग सोचती हैं और दूसरा ना वो सोचती हैं बड़ा शॉर्ट लिव्ड सोचती हैं, बहुत लंबा नहीं सोच रही होती कि मैंने जो इस टाइम जो चीज़ कर रहूँगी मैं, उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म में। बड़े जल्दी इमोशनल डिसीजंस ले लेती हैं, बड़े जल्दी इमोशनल एक्शंस कर लेती हैं। ये औरतों की एक मतलब मोस्टली मैं ये नहीं कह रही हो सकता है सफीना बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मोस्टली ये होता है कि औरतें जज़्बाती बीइंग्स होती हैं और इसी वजह से उनके जो कम्युनिकेशन का स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट होता है। मैंने इसी तरह ही पहले ये कहा था क्योंकि हमारा जेनेटिक मेकअप ही डिफरेंट है मर्दों और औरतों का और हमारा फिर उसके बाद जिस तरह हम एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरे तो बहुत ही अलग हमें सर्कमस्टांसेस मिले। तो उस वजह से मैंने इसी पॉइंट के ऊपर कहा था एक तो डिफरेंट भी है हमारा बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना वो एक किताब भी है कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। तो हम लोग मतलब मैं अक्सर ये भी कहती हूँ तौफीक भाई कि मुझे तो कभी-कभी लगता है कि हम स्पीशीज ही अलग हैं। शायद वो जैसे बांदरों में कुछ गुरीला है, कुछ वो है ना, तो हम भी शायद ना मेल और फीमेल का एक शायद बड़ा स्पीशीज तो सेम हो लेकिन सब स्पीशीज मुझे लगता है कभी-कभी हम लोग डिफरेंट है। इतना मुझे कभी-कभी ना चेंज नजर आता है। तो उस लिहाज से तो ये तो कंफर्म है कि हम लोग बहुत अलग तरीके से बोलते हैं। अब उसकी हमने डिबेट कर ली है कि वो मर्द जो हैं वो अच्छा बोलते हैं कि औरतें अच्छा बोलती हैं, जिसमें मैं अभी भी अपने पॉइंट पे हूँ कि औरतें बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर देती हैं, इवन दो कि उनको उस तरह के मौके नहीं मिले। तो इसमें कुछ चीज़ों के साथ Thank you for your point. Ji Mustafa, do men and women communicate differently? And if you think yes, tell me why. अच्छा राइट, अच्छा ये मैं ना इसका बड़ा सिंपल सा आंसर रखता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। औरतें और मर्द तो दोनों आपके कहने का मतलब है कि पहले किसी को कुछ समझ नहीं आई जो आपने बोला। मैं बताता हूँ। अच्छा, एक बात आप एक खातून से पूछे और एक बात आप एक मर्द से पूछे, राइट? मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो जनरली अपने करियर में कुछ ना किसी न किसी जगह पर है, कोई ना कोई पोस्ट पे अपने ड्यूटीज वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं। लॉजिक और जब आप आएगा ना लॉजिक में मैजिक वाली बात, तो वो आपको बंदे में मिलेगी। जो ही आपने बात को लंबा करना होगा ना, मतलब उसके इतना लंबा घुमाएंगी वो खवातीन में आ जाएगी। एंड दिस ये नहीं कि वो समझा नहीं पाती, लेकिन वो एक ही बात को कोई चार मुख्तलिफ तरीके से बोलती हैं। बंदा कंफ्यूज होता है कि पहली वाली बात ठीक थी या दूसरी वाली बात ठीक थी या तीसरा जो इसने मुझे सोल्यूशन बताया वो सही था। एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज फील कि इनकी कम्युनिकेशन बिल्कुल डिफरेंट है। और जब वो बच्चे को भी ये समझाती है ना, बच्चे आपको ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो बचपन में उनको समझ नहीं आता कि माँ ने क्या बता दिया, वो कहते ये चीज पकड़नी है, उस दिन कहा था कि नहीं पकड़नी है, आज कह रही पकड़, तो वो वो बच्चों में भी कंफ्यूजन पैदा करेगा। ऑन द अदर हैंड जो बाप होगा ना कहेगा अच्छा सॉरी मुस्तफा, ये बहुत बड़ी चुस्ती है। नहीं, बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। नो क्रॉस टॉक प्लीज। अगर बंदा कहेगा ना अपने बच्चे को कहेगा नहीं लगाना हाथ तो नहीं लगाना, बस वो ना मर्द का ना फिक्स हो जाए। कहने का मकसद ये है कि खवातीन ना कोई लूप होल्स ढूंढती हैं कि यार शायद मेरी ये वाली बात क्लिक कर जाए, शायद ये क्लिक कर जाए, शायद ये क्लिक कर जाए। दैट्स हाउ दे वर्क। बट ऑन द अदर साइड मैन ऑलवेज लुक फॉर लॉजिक विद मैजिक। जी Okay, thank you Mustafa, आपका पॉइंट आ गया। तो what you basically saying, men are very firm what they say and they mean it. लेकिन what you said was women go in circles and around and stretch it around. That's what you were saying. So anyways, तो अब आप क्विकली जो भी मुस्तफ़ा की ने बात की है, अगर आप उससे डिसएग्री करती हैं डॉक्टर बेला, तो क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें, देन आई हैव टू गो टू द अदर टू पीपल आल्सो। वही मैं कहूंगी कि मुस्तफा ने फिर वही एक सेक्सिस्ट रिमार्क दिया है कि औरतें जो हैं वो मुख्तलिफ नहीं बोलती, मतलब कि वो जो है वो बातों को बड़ा घुमाती हैं और ये करती हैं, और मर्द जो है वो बड़ा सीधा और मैजिक विद लैजिक, पता नहीं क्या बोल रहा था, एक बड़ा अच्छा जुमला उसने कहीं से पिक किया। मुझे नहीं पता कुछ बोल रहा था, मैजिक विद क्या था, लाइव एग्जांपल है। लाइव एग्जांपल यही है ना। नो हाँ, क्रॉस टॉक जो भी प्लीज, बोला नो था। क्रॉस हाँ, टॉक। तो मुस्तफ़ा ने जो मैजिक डाला है मर्दों के अंदर, जो हमें तो समझ नहीं आया आज तक, इतनी जिंदगी गुजर चुकी है हमारी, वो मैजिक शायद इन लोगों ने अपने दिलों में ही छुपाया हुआ है, जो हमें तो इनकी कम्युनिकेशन में कभी नजर नहीं आता वो मैजिक। ना ही बच्चों को नजर आता है। मजे की बात है, बच्चों को भी जब भी कोई बात करनी होती है ना, वो मैजिक बाप के अंदर नजर नहीं आता, वो माँ के पास ही आते हैं, वो माँ लेके के आते अंदर हैं। नजर आता है। हाँ, यस
तो वो मैजिक जो है वो सिर्फ इस टाइम समहाउ मुस्तफा और उस्मान के अंदर ही नजर आ रहा है, मुझे आम जिंदगी में वो मैजिक कहीं नजर नहीं आता। और मैं इस बात से इख्तलाफ करूंगी कि औरतें जो है वो बेवकूफ होती हैं, वो सोचती रहती हैं कि ये मैं तो ऐसे करूं तो ये तो किसी इस ने बात का एक मिनट तौफीक भाई, हर बात का एक मतलब होता है ना। इस बात का ये मतलब है ना कि आप 3 तरीकों से हम बात कर रहे हैं, कभी हम कान को इधर से पकड़ते हैं, फिर हम कहते हैं ओ हमने तो कान को इधर से नहीं उधर से पकड़ना था, फिर हम उधर ले आते हैं, यानी हम चले हम पागलों की तरह अपनी बातों में उलझ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशनल हमारा। अब मैं इस वजह से इस चवल की शक्ल ही नहीं देख रही कि मुझे फिर हंसी आनी है, मैं आप ही को देख रही हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेरा पॉइंट्स है। ये किसने बहुत वर्ड बोले चवल वगैरह, ये तो तुम हो क्रॉस क्या करेंगे, लोग नीचे लिखेंगे कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर बेला ने सही बोला। हाँ। अच्छा, आपका पॉइंट आ गया, थैंक यू वेरी मच। तो आप बेसिकली कह रही थी कि उस्मान सॉरी मुस्तफा जो है वो बौंगियां मार रहा था और चवलियां मार रहा था। एक क्वेश्चन है आपसे, जो डॉक्टर बेला ने कहा आपको समझ में आया, पहले ये बता दे बस। एक मिनट, सफीना जो मैंने कहा आपको समझ में आया? सफीना हाँ कर दे, हाँ कर दे, हाँ आया सच में सफीना आया, इसमें क्या है? होस्ट न्यूट्रल होता है, होस्ट तो खुद मेल है, यही तो मेरा रोना है कि कोई फीमेल जज भी हो ना। नहीं तो ये हर वक्त रोना क्यों रहता है खवातीन का? चाहे तो आप भी ना एक बिल्कुल इस टाइम मर्दों वाला भी यार। तो फिर भाई आप ऐसा करें। नहीं, मैं न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि होस्ट नॉर्मल है। I am not neutral. तौफीक साहब, I have been neutral. I'm not saying anything. तौफीक साहब आप अपने आप को डिफेंड ना करें। What have I said so far? नहीं कर पाएंगे आप, अगले 100 साल भी लगे ना, आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। हाँ, बहुत मासूम है ये मुस्तफा, तो बहुत ही मासूम है बेचारा, वकील होके इसको डिफेंड नहीं करना आ रहा था क्योंकि खवातीन है ना। अच्छा एक मिनट मुस्तफा, मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, क्या जो वकालत का शोबा है उसमें क्या मर्द अच्छी? तौफीक साहब आए रिवाइश ही आस्किंग द डायरेक्ट क्वेश्चन। No, it's your turn उस्मान, अब आप बात करें। Yes, exactly. अच्छा देखिए, चलो पॉइंट पे रहना है, पॉइंट पे। हाँ, communication is about active listening and then disseminating the information, ठीक है जी। और मसला ये डिफरेंट इसलिए होता है कि खवातीन जब सुनती हैं ना तो उसको इमोशंस के साथ हमेशा प्रोसेस करके डिसेमिनेट करती हैं एक इंफॉर्मेशन को, ठीक है। एक ही बात को आप करेंगे, मर्द सोचेगा चाहिए है, ठीक है, इसका ये लॉजिकल रीजन है, इसका ये लॉजिकल कंक्लूजन है, वो डिसेमिनेट करेगा। खवातीन इमोशन ऐसा नहीं होता हर दफा मर्द जो ज्यादातर। मैं ओवरऑल एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द रीजन कि वो किताब भी लिखी गई जिनका हवाला डॉक्टर बेला ने दिया। मैं मिसाल देता हूँ, अभी इसी कन्वर्सेशन में जो भी देखने वाले हैं ना उनको मैं कहूंगा कि ये जो भी पीछे डॉक्टर बेला ने कहा उसको नहीं, उससे पहला जो रिमार्क था ना उसमें डॉक्टर बेला का एक्सप्रेशन चेक करना। जब उन्होंने मुझसे एग्री किया था कि उस्मान की बात मैं सही मानती हूँ कि औरतें इमोशनल होती है, उन्होंने कहा था अल्लाह ताला ने एक जो हमें इस तरह का बना दिया है ना, उनका लहजा चेक करना, आप उनका लहजा चेक करें, आपको उसमें ना कंप्लेंट महसूस होगी। यार उस्मान इस टाइम ये वाली हरकत, एक मिनट, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, हाय अल्लाह मियां ने मुझे ऐसा बना दिया। मैंने ये तो नहीं कहा क्या था, मैंने ये नहीं कहा कि आपने हाय का लफ्ज इस्तेमाल किया। नहीं लेकिन उस्मान शुरू में कहा था यार, एक मिनट मेरा पॉइंट पूरा हो लेते, एक पॉइंट पूरा लेते हैं, देखिए। और एक मिनट मुस्तफा, मैं तुम्हें मैसेज भी करने लगी थी, हंसो ना। ठीक है मुस्तफा खुल के हंसो मेरे भाई, खुल के हंसो मेरे भाई, खुल के हंसो। अच्छा, क्विकली कंप्लीट योर पॉइंट। आई हैव टू मेरा पॉइंट पूरा होने दे। देखिए खवातीन का मसला ये होता है, डिफरेंट इसलिए कम्युनिकेशन हो जाती है क्योंकि जब आप कोई भी, चाहे वो मर्द हो, कोई मर्द भी अगर किसी चीज को इमोशनल होके सोचेगा ना तो वो हमेशा पूरी बात को नहीं सुनेगा और दरमियान में से एक पॉइंट उठा के अपने मतलब का उसको इमोशन के साथ प्रोसेस करके ना उस पर जवाब देगा, जिसकी वजह से हमेशा आप कोई भी बहस देख लें, आप एक बहस देखें जिसमें वो मर्दों की आपस में बहस चल रही हो, वो एक पॉइंट पर लड़े होंगे। ये नहीं मैं कहता मानता कौन है या मानता नहीं है, एक पॉइंट पर लड़े होंगे। आप खवातीन की बहस देखें, आप खवातीन की बहस देखें। देखिए तभी तो मैं आपको आज की मिसाल देता हूँ, अभी आप जाएं, स्पेसेस अभी चल रही होंगी, एक रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगा। मर्द लड़े हैं उसमें, ठीक है, मर्द लड़े हैं और उसमें 2-3 लोगों की आपस में लड़ाई हो रही है, एक पॉइंट है, वो 6 घंटे स्पेस चली लेकिन पॉइंट एक ही है, ठीक है। उसके अलावा खवातीन आप देख की रहे हो रही हैं है 6 घंटे में एक कम्युनिकेशन नहीं हो पाई। भाई माशाल्लाह, क्या लेवल है आप लोगों की कम्युनिकेशन का। 6 घंटे आप लोग रोते रहे, किसी को समझ नहीं आया। She's validating my point. She's validating. I'm not talking about कि कम्युनिकेशन किसकी बेहतर है, वो सुनने वाले मानेंगे करेंगे कि उनमें से किसकी सोच।
मैं जो बात कह रहा हूँ कि खातून जब लड़ती है ना, जब दो खवातीन की आपस में लड़ाई होती है ना, बिकॉज देयर आर इमोशंस, वो कभी एक पॉइंट पे बात नहीं होती। आप उठा के देख लें, स्पेसेस में चले, दो खवातीन की लड़ाई हो रही होगी ना, वो पिछली 6 बातों को लेके आ रही होंगी, तूने नहीं कितना से कितना। रीजन यही होता है, रीजन ये है, रीजन सिर्फ ये है कि बिकॉज व्हेन इमोशंस आर देयर थिंग्स गो हायर, बिकॉज वो उसका जो है ना पॉइंट लॉजिकल नहीं रहता। ठीक, अच्छा ठीक है, अच्छा मैं दोबारा प्लीज एक मिनट दोबारा, आप लोग इतनी डिटेल्स में ना जाएं। उस मसला ये नहीं है कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है, वो पहला सेगमेंट था। मैं सिर्फ सवाल ये पूछ के पछता रहा हूँ या फंस गया हूँ कि मैं पूछा ये है कि कम्युनिकेट अगर करते हैं तो व्हाट डू दे डू डिफरेंटली इफेक्टिवली। I gave you the answer. अब डॉक्टर बेला ने इमोशंस के साथ का हाय अल्लाह करके कहा, अल्लाह मियां ने ऐसा बना दिया, तो नहीं हाय अल्लाह नहीं कहा, नहीं तो मेरी कोई हाय अल्लाह नहीं कहा। इस पे मैं तुम्हें अलहदा भी फोन करूंगी, मैंने कब कहा हाय अल्लाह करके? मैं तो पता नहीं बहुत मैंने ये नहीं कहा कि आपने हाय अल्लाह कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि आपने हाय अल्लाह कहा है, नेवर सेड दैट। तुमने जो शुरू में कहा उसमें मैंने ये बातें नोट की हुई हैं। आई हैव नेवर सेड दैट। मैं बताती हूं, मेरे भी ज़हन में मैं आपको डॉक्टर बेला मैं आपको डिफेंड कर रहा हूँ, इधर आपने बीच में मुझे ही टोक दिया। मैं कह रहा हूँ उन्होंने कब कहा था जो तुम उनका वो बना रहे हो कि उन्होंने ये कहा कि अल्लाह मियां ने बेचारे उनका ऐसा बना दिया? नहीं ना उन्होंने बेचारे का लफ्ज किया ना हाय अल्लाह कहा, ये नहीं कहा। मैंने कहा था उनके लहजे में शिकायत थी। दिस इज व्हाट आई सेड बिकॉज इमोशंस वर टेकिंग ओवर, दैट वाज माय पॉइंट। आई नेवर सेड शी यूज हाय अल्लाह और बेचारा। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसको तशरीह कर रहा था जैसे आप नहीं तशरीह ना करें, इमोशनल वाली तशरीह से ही प्रॉब्लम होता है असल में। ठीक है, अच्छा अब सफीना आप बात कर लें, and then lastly I'm going to go to Mustafa. I'm over the time limit right now, and then we'll take quick final comments. जी मुस्तफा, सफीना साहब ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ what is the difference between men and women in their communication? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ introduce ਕਰੋ ਨਾ emotions, yes we do have emotions and we do exercise them. The problem is that they do not exercise their emotions because their emotions are suppressed. Okay. They are not allowed to bring their emotions. They do not allow it themselves. So agar ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਨੀ ਆ ਕਿ we have the time of the month and all of that and our hormones, but men have hormones too. They go according to them as well. But I agree. ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਨਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਨਾ। I agree सफीना, मैं आपके पॉइंट से इसलिए एग्री करता हूँ, ओके, एंड आई टेल यू व्हाई आल्सो, कि आप अगर देखें, मैंने देखा है अपने बचपन में, अगर इफ यू रिकॉल योर मेमोरी मुस्तफा एंड उस्मान, स्पेशली टू गाइस, कि जब हम घर में खेल रहे होते थे बहन भाई, और भाई अगर गिर जाए या चोट लग जाए या साइकिल चलाते हुए गिर जाए या गार्डन में कहीं गिर जाए, तो अगर वो रोना शुरू कर दे तो बड़ा आके कहता है उठो उठो बेटा, मर्दों को दर्द, लड़कों को दर्द नहीं होता, लड़के नहीं रोते, ये लड़कियों का काम है। कितना जुल्म है ये फीड किया जाता है, and I have heard that in my lifetime too. That's a very specific context. No, it's not. But it's part of it. It's all of it. नहीं, उस्मान का काम है तीली लगाना, में माचिस पास रखता है अपने ना, ये ऐसे ये तो आज क्या कर रहा है उस्मान, ये तो आज झंडे पे आया हुआ है कि इसने आज तीली लगानी है, पता नहीं कहाँ से नीचे से उठा के ऐसे डब्बी पास रखता है और ये करता रहता है बस। ये जो इसने सुपारी भी रखी हुई है ना लाल पता नहीं किसमें, वो आज उस्मान को पिछले वाले पॉडकास्ट में उस्मान तुम तीलियां नहीं लगा रहे थे वैसे। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕੀਏ। मैं तो बहुत इमोशनल आदमी है। I agree with you on that सफीना। और एक बहुत बड़ी saying या मूवी थी या पता नहीं क्या था या गाना था, मर्द को दर्द नहीं होता, आप लोगों ने या डायलॉग सुना होगा, तो but that is हाँ, बट ये एक चीज है जो मर्दों को शुरू से, लड़कों को बड़े होते हैं, जवान होते हैं और बड़ी एज में आते हैं, उनको अपनी इमोशंस दिखाने की इजाजत नहीं होती। इजाजत नहीं है, and that's why
they have to think only logically. They're not allowed to think in any other way. लेकिन औरतों ने जो है ना उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया, सारे कर लेंगे, सारी लेकिन बात यह है कि अगर if woman wants to cry and show the emotion, they would do it in the front of the brother or father or husband. But मर्द ये नहीं करेगा, even if he wants to. I'm telling you the truth, my opinion. कि वो मर्द नहीं करेगा बीवी के सामने, बहन के सामने, माँ के सामने या बाप के सामने. तो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ उस्मान, आपका वाला पॉइंट ओवरऑल. I'm not talking about you right now. I'm giving you मैं स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट पे आ गया. मैं आपका एग्जांपल आपको वापस दिया कि I'm talking overall. So that is I personally believe. तो फिर ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਸੈਡ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ. Nobody criticizes them. When they start that is moving forward, and that is allowing them to feel. And when they feel, then they don't feel as though they have to do the communication. Whereas we have to do the communication, the feeling. In our heads, we have to order everything all throughout the day, from the morning to night. Asande dimag jaldi hunde. So how can Usman say that just assi logically think karne a, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ logically think ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਚ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ. ਚਲੋ ਜੀ, let's go next. No more red cards. जी Mustafa, आप please final comment. I actually totally disagree with the point which have been just made. Point ये बता रहे हैं, ये emotions की बात कर रहे हैं कि emotions कौन ज्यादा करता है, और वो तो जाहिर बात है खवातीन ही करती हैं. बिकॉज उनको रोमांस उनको होता है कि मोहब्बत भी ऐसे हो कि वो कैंडल्स लगी हो, पर्दे वो रेशम के हो, और वो हवा चल रही हो, हल्की सी, कोई पहाड़ों के अंदर दरख्त के अंदर की फंसा हो लड़का, वहां से निकाल. इधर शादी हुई है कि नहीं? No personal questions, please. No personal questions. घोड़े भाग रहे हो, फिर गुलाब मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ. You know, this is how they emotions की बात करें. कम्युनिकेशन की बात आएगी, आप ये देख लेना, ये हर औरत का पेट जुमला होगा. मैंने ही कब कहा था? मैं ऐसा कह सकती हूँ? मेरा तो मतलब ही नहीं था ये कहने का. ये इनके 3 पेट जुमले होंगे. मैंने कभी कहा ही नहीं ऐसा. मतलब बंदा कहता है यार मतलब ये तो मुझे लग रहा है कोई पर्सनल एजेंडा है कि जिसमें कोई अपनी पुरानी दुश्मनियां निकाली जा रही है. मुस्तफा यार मैंने कब कहा था, मैंने ये इस तरह, तो फिर हम भी बहुत जुमले बता सकते हैं कि जो आप लोग कहते हो. ये तो कुछ जुमले हर एक के होते हैं ना यार. और इमोशंस की एक्सपीरियंस है किथों मिलिया है पता नहीं, इतना बेचारा का बैड एक्सपीरियंस. ਓਏ ਘੋੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਪਰ ਬਰਾਤਾ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀ ਮੁੰਡੇ ने. वकील है, बसे बसाए घर में वो तलाक कराता है, इतना अच्छा बोलता है बेचारा. अच्छा नहीं, बात सुने. कम्युनिकेशन और ये किसने कहा है कि जी घोड़े चल रहे हो, लड़के फंसे हो दरख्तों में? ये किस औरत ने तुम्हें अपनी फैंटेसियां बता दी हैं? ऐसा करो. बात करने दे उसको, बात मुकम्मल करने दे उसको. अच्छा, अब मेरा प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन का. देखिए, ये एक ही चीज को 10 मुख्तलिफ तरीकों से बोलना है, लेकिन असल बात एक मिनट प्लीज. सफीना, उस्मान, डॉक्टर बिला, प्लीज म्यूट योर माइक. प्लीज म्यूट. ओके जी मुस्तफा. असल बात है ना, वो वहीं पे रह जाएगी. उसके मैं बता रहा हूँ कि अगर एक पॉइंट है ना, उसका बताएंगे एक ऑप्शन ये भी है, लेकिन जो असल प्रॉब्लम होगा वो कभी नहीं उसको फिट करेंगे. यार ये चीज ऐसे फिट होती है. That's what I say. It's because of the experience. Because normally खवातीन का एक्सपीरियंस वैसा नहीं होता जैसे बंदे का होता है. Because मर्द ने इतने सारे प्रैक्टिकल कर चुका होता है उस एज में, जिस एज में आई डोंट थिंक सो खवातीन उस तरह के प्रैक्टिकल कर चुका. हाँ, मैं घर की तो बात करूँ तो आई कैन बिलीव दैट कि भाई घर में उनको बहुत ज्यादा समझ होगी, बच्चों के इमोशंस पता होंगे, हस्बैंड के इमोशन पता होंगे, भाई के, बाप के. दैट्स टोटली फाइन. लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन, जब आप प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं, वन वे अनदर समहाउ दे लैक. आई विल नॉट से एवरीवन, एवरी वुमन, बट मोस्टली इट हैपेंस कि दे लैक टू कम्युनिकेट. दे ऑलवेज ट्राई टू गिव सो मेनी स्टोरीज ऑफ अ सेम थिंग और सेम पॉइंट. इतने सारे इश्यूज रेज कर देती हैं एक ही पॉइंट पे कि आप भूल जाते हैं कि आपने किस पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे थे. एंड दैट इज वेयर आई बिलीव कम्युनिकेशन में भी बंदा बेहतर और उसके पास स्किल्स भी ज्यादा बात को अपने आगे करने के. जी
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त इज ऑलमोस्ट डन, तो लेकिन ये कि इसका एक वी विल हैव अ सेकंड पार्ट, a second episode on the same topic because there's a lot to talk about. अभी इस पे बहुत सारी बात करने वाली हैं। 2 सवाल किए हैं टोटल, 2 सवाल in 1 hour, only 2 questions। और अभी भी, और मेरे पास 4 सवाल और लिखे हैं, तो मुझे लगता है इसकी 2 एपिसोड्स और करनी पड़ेंगी क्योंकि 2 सवालों में ही अभी तक खत्म नहीं हुआ हमारी डिस्कशन है। तो पहला जो सेगमेंट था उसमें हमने पूछा था कि आर मेन बेटर इन कम्युनिकेशन देन वुमेन, तो वो सबने अपना इजहार ख्याल किया। थोड़े पंचेस भी चले, थोड़े कुछ किक्स भी मारी होंगी लोगों ने, वो मुझे नजर तो नहीं आ रही, लेकिन ऑब्वियसली यू प्रॉब्ली किक्ड इट अंडर योर कीबोर्ड्स और समवेयर। और सेकंड सेगमेंट में भी अच्छी इट वाज अ गुड कॉन्वर्सेशन, अग्री टू डिसएग्री, but overall it was I believe it was a very good conversation with good points by Safina, Dr. Bela, Osman, and Mustafa also. Even though we talked about history, we talked about research papers, we talked about we gave so many other examples. Dr. Bela you looked very angry today, an angry young woman who want to punch someone today on their face, or आज आप काफी गुस्से में नजर आए। That was not typical of you, whatever the reasons may be, लेकिन inshallah when you come to the second episode of this section, so I'm sure you will be more in a much better mood inshallah. We will have the same participants because कि आप लोगों को सवाल पता है और मैं I will come up with new questions. Obviously I'm not going to discuss the same again, so I will come up with new questions. And one thing I learned today, when I request all of you to please mute your mic so one person can speak, तो वो बीच में जो बकरा मंडी स्टाइल का एक माहौल बन गया था, उसमें कुछ समझ नहीं आ रही थी मुझे कि कौन क्या बोल रहा है and who's making what point. I had no clue. So I'm not gonna come to the conclusion who is better. I'm sure कि दोनों अपनी जगह they do their best, and everyone have their own experiences. Yes, we communicate differently. I can tell you about that one कि हम ख़वातीन और मर्द हम communicate different तरीके से करते हैं. We have our own approach, and there's a lot to do with how well you have been जिसे उर्दू में तरबियत कहते हैं from your parents, कि कैसी आपको मिली हुई है, तो that's where your communication comes out. So it has a lot to do, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि तालीम और तरबियत, so if you just have तालीम and you don't have तरबियत, it's not gonna help you. So you gotta have both. So that's very important. तो इसके साथ ही हम आज का इस सेशन को conclude करते हैं, और and I promise you we'll come back with the second episode on the same subject but different questions inshallah, and hopefully we'll try next time. We will actually I will try to do it better, so ये लोग लड़े नहीं, गुस्सा ना हो, और कोई और जो है ना इस किस्म की बात ना हो, लेकिन overall it was a wonderful session. Thank you very much for watching Coffee with Tawfiq session on my YouTube channel, and stay tuned, like, share and subscribe with your friends. Thank you Safina, thank you Usman, thank you Dr. Bela, thank you Mustafa. As always, you guys are wonderful, and inshallah I will see you again in the next episode. Thank you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.